Yes, everyone. Tell me that this point is clear to everyone or not. Fast. कैसे हम वर्टिकल सर्किल की बात करते हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. टेंशन कहाँ लग रहा है? mv स्क्वायर बाय l कहाँ लग रहा है? बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं. चलिए तो आगे चलते हैं. मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाता हूँ. Now the question is, if particle of mass 2 kg is subjected to a constant retarding force of 5 Newton. If it moves with an initial speed of 10 meter per second, then calculate the time in which it stops. आप कैलकुलेट करके बताइए टाइम जिसके अंदर ये क्या कर जाए, रुक जाए, स्टॉप हो जाए. इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं. तो इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, सो 4. फाइनल वेलोसिटी देखें तो इट इज 0. Now acceleration is not provided to us, but force has been given to us. So force is 5 Newton and mass is equal to 2 kg. So if we want to calculate the acceleration acting on the particle, we will use the formula force is equal to mass into acceleration. So F is equal to mass into acceleration. So what will be the formula? A is equal to F by M. F is equal to 5 Newton. M is 2 kg. So answer becomes 2.5 meter per second square. अब तो बेटा टाइम निकालना है ना. क्या निकालना है? टाइम निकालना है. तो टाइम निकालने के लिए we will use the first equation. V is equal to U plus AT. So what is the final velocity? It is 0. Initial velocity it is 10. Acceleration is 2.5 and time is, we have to calculate. So from this we can calculate time is equal to 4 seconds. So from this we can calculate the time is equal to 4 seconds. 4 सेकंड का टाइम लगता है यहाँ पर. So I hope यहाँ तक बात सबको क्लियर होती है. Yes or no? Fast. Yes, everyone. Yes, Mohit, संयम. क्लियर है सबको? चलिए बहुत अच्छी बात है. वेरी गुड. Moving on to the another question, let us talk about that. Let us see. The question is, there is an object of 5 kg
which has been subjected to two different forces. One is 6 Newton and the other one is 8 Newton. Both are acting in the mutually perpendicular directions. My question is, what is the acceleration of the particle? So the question says, calculate the acceleration of the 5 kg block. हमारा सवाल है 5 kg का जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट करके हमें बताइए. Calculate the acceleration of the 5 kg block. Yes, calculate the acceleration of the 5 kg block. कौन मुझे बता सकता है सर कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए फोर्स अपॉन मास करना पड़ता है, लेकिन सर यहाँ पर तो हमें दो फोर्सेस दे रखे हैं, तो हम कौन सा फोर्स यूज करेंगे? Who can give the answer? Yes, अभिवर्धन, मोहित, नमन, संयम. कौन मुझे बता सकता है कि हम कौन सा फोर्स यूज करेंगे? यहाँ पर 6 न्यूटन यूज करें, 8 न्यूटन यूज करें? क्या ये 6 न्यूटन वाली डायरेक्शन में मूव करेगा या ये 8 न्यूटन वाली डायरेक्शन में मूव करेगा? Annual facility has been given to you. You guys give me the answer. सर 8 न्यूटन वाली डायरेक्शन में. क्यों सर? क्योंकि वहां पे फोर्स ज्यादा लग रहा है. ज्यादा लग रहा है तो उसकी तरफ चला जाएगा बेटा. हम अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा लगाते थे तो उसकी डायरेक्शन में जाता था, यहाँ तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए नहीं, यहाँ तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. तो हम रिजल्टेंट निकालेंगे. वी हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. रिजल्टेंट फोर्स और द नेट फोर्स अगर वो कैलकुलेट कर लिया जाए तब जाके हम ये बता सकते हैं कि इस पे एक्सेलरेशन कितना होगा. तो बेटा दो फोर्सेस, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट होता है? R is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. So cos theta, theta angle is 90 degree between both of them. So we can say theta is equal to 90. So cos 90 is 0. So the formula for resultant comes out to be under root of a square plus b square directly. So square of 6 is 36 and square of 8 is 64. So the answer becomes 100 under root. So we can say that the resultant is 10 Newton. अब हमारे पास resultant force जो है ना 10 न्यूटन है बेटा. That means ना ही ये 8 न्यूटन की डायरेक्शन में जाएगा, ना ही ये 6 न्यूटन की डायरेक्शन में जाएगा. ये 10 न्यूटन वाला फोर्स जो रिजल्टेंट लग रहा है उसकी डायरेक्शन में चलने लगेगा, जो कि समवेयर इन बिटवीन है. ये हमने एफ नेट फोर्स को दिखा रखा है यहाँ पर, ये रेड कलर से. ठीक है, नेट फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन लग रहा है, समवेयर इन बिटवीन लग रहा है. So what will be the acceleration? Acceleration will be equal to 10 divided by 5. So answer will be 2 meter per second square. अब आया आंसर. ना 6 यूज करना था ना 8 यूज करना था, उसका रिजल्टेंट यूज करना था. फॉर्मूला क्या कहता है? अंडर रूट ऑफ a square plus b square plus 2ab cos theta. वेक्टर्स में पढ़ा था अपन ने, जब वेक्टर क्वांटिटीज की स्टडी कर रहे थे वहां पर अपन ने ये चीज देखी थी. रिजल्टेंट आ गया हमारे पास 10 न्यूटन. आई होप यहां तक बात सबको क्लियर होती है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. यस और नो? फटाफट बताइए सबको क्लियर हुआ कि नहीं. फिर अपन डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे. आई होप यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए. फिर डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं. फटाफट बताएं. हुआ सबको क्लियर? बहुत अच्छी बात है.
अब बेटा डायरेक्शन अगर निकालनी है तो नेट फोर्स को मान लेते हैं थीटा एंगल पे फ्रॉम द 8 न्यूटन एंगल, फ्रॉम द 8 न्यूटन फोर्स. So the resultant is in the direction of theta from the 8 Newton or from the horizontal. अब क्या करना है, हम 6 न्यूटन को पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं. 6 न्यूटन को यहाँ ले आए पैरेलली शिफ्ट करके, 8 न्यूटन बेस था ही. So if we calculate tan theta, तो वो आएगा परपेंडिकुलर. If we calculate tan theta, so ये होगा perpendicular which is 6, base which is 8. So the answer will be 3/4. अब बेटा tan की वो वैल्यू जो 3/4 एंगल दे दे, तो थीटा एंगल 37 डिग्री आ गया यहाँ. जानते हैं tan 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/4. यहाँ से आंसर कैलकुलेट हो जाता है 0.75. आई होप यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई होगी. अगर हुई है, कैसे हमने डायरेक्शन निकाली, कैसे अपने मैग्नीट्यूड निकाला, फटाफट बताएं. सबको क्लियर है तो हैंड रेज करके मुझे. बोथ द क्वेश्चंस जो कि हमने अभी क्लास के अंदर किए हैं, आज की क्लास के अंदर जितना कुछ भी देखा है वो सब एनसीईआरटी का ही है पार्ट. हमने प्रैक्टिस बहुत हाई लेवल की है, लेकिन एनसीईआरटी को जब अपन सॉल्व करते हैं तो इट इज वेरी बेसिक. 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर एडिशनल से पहले वाले सवाल जितने भी हैं वो सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं. Moving on to the next question. My question is, if a particle of mass 0.4 kg moves towards north with velocity 10 मीटर पर सेकेंड. एक पार्टिकल था जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, 0.4 kg का मास है उसका, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है. तो स्टॉप. इफ a constant retarding force of 8 Newton is applied on it in the south direction, अगर उस पे साउथ डायरेक्शन में 8 न्यूटन का कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स उस पे लगता है, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल. सबसे पहली चीज कमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल. पार्टिकल के मोशन के बारे में हमें बताइए कि मोशन ऑफ द पार्टिकल यहाँ पर कैसा है. ठीक है, हमें सबसे पहले क्या बोला, हमें सबसे पहले ये बोला गया है कि यार आप हमें ये सबसे पहले तो ये बताइए दैट पार्टिकल का मोशन कैसा होगा. पार्टिकल जा रहा कैसे, नॉर्थ में जा रहा है, तो इसको बना लेते हैं. ये बनाया अपन ने 0.4 kg, जा कहां पर रहा है, नॉर्थ में. कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से. कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से. It is moving in the north direction, and a constant retarding force is acting on it in the south direction. So 8 न्यूटन का फोर्स साउथ लग रहा है. First of all, my question is that what will be the direction of acceleration in this question? Acceleration इस क्वेश्चन में क्या रहेगा. दूसरा क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, दूसरा सवाल ये. और तीसरा सवाल, अगर बढ़ेगी तो उसके बाद क्या होने वाला है, और घटेगी तो उसके बाद क्या होने वाला है, ये आपको सोच के बताना है. तो जितने बच्चे भी इसका आंसर बता सकते हैं हैंड रेज कर लो ताकि मैं आपसे पूछ लूं. सोच के बताना. 8 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा है, मास ऊपर जा रहा है, तो लॉजिक सोच के बताओ क्या होगा. यस अभिवर्धन, अनम्यूट करो, बताओ. सर सामने की तरफ आएगा सर. सामने की तरफ नहीं, मेरे को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन से बताओ. मेरे को नॉर्थ वेस्ट में जाएगा. वेस्ट में जाएगा. वेस्ट में तो नहीं जाएगा बेटा.
It will not move in the west direction. Why? अरे खुद सोचो, एक साइकिल वाला आगे जा रहा है, तो कोई साइकिल पे तुम्हारा दोस्त था, ठीक है, और तुम्हारे हाथ से जो चिप्स का पैकेट था तुम्हारे हाथ में, वो खींच के छीन के वो ले गया आगे। अब तुम्हें उसे रोकना है, तो रोकोगे कैसे? तो साइकिल चल रही है आगे, उसको रोकने के लिए आप फोर्स कहाँ लगाओगे? पीछे लगाओगे। फ्रिक्शन कहाँ लगता है? पीछे लगता है, तब गाड़ी रुकती है। तो यहाँ पर जब ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर फोर्स पीछे लगाने की वजह से क्या होगा? उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। एक समय ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आके इसकी वेलोसिटी हो जानी है 0। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जानी है? 0 हो जानी है। क्या वहां पर पार्टिकल रुक जाएगा? यस सर, वहां रुक जाएगा। लेकिन क्या सर वहां पर 8 न्यूटन का फोर्स लगना बंद हो चुका है क्या? नहीं, फोर्स तो अभी भी डाउनवर्ड लग रहा है। फोर्स तो अभी भी डाउनवर्ड लग रहा है। पार्टिकल ऊपर जा रहा था, फोर्स तब भी डाउनवर्ड लग रहा था। पार्टिकल अब रुक चुका है तो भी फोर्स डाउनवर्ड ही लग रहा है। अब जब पार्टिकल रुक गया लेकिन आपने खींचना उसे बंद नहीं किया है, तो वो आपकी डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगा। दैट मींस अब ये नीचे आना शुरू हो जाएगा ऐसे। क्या ये यहाँ पर ओरिजिनल पोजीशन पर आके रुक जाएगा क्या? नहीं, और नीचे आएगा, और इस तरीके से ये नीचे चलता जाएगा जब तक इस पे फोर्स लगेगा। तो यार आप खुद सोचो ना, लॉजिकली एक चीज बात को इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। जो कि मेरे पास ये है कि सर आपने बोला ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, इस पे फोर्स लगा साउथ डायरेक्शन में, ठीक है सर, मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात। जब अपन मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो पार्टिकल डिसेलरेट करता है, ये भी चलो हमें समझ में आ गया। डिसेलरेट करेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ बी पॉइंट, और इस बी पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी फाइनल हो जानी है 0। क्यों? क्योंकि डिसेलरेशन है। एक ना एक समय ऐसा आएगा जहां पर 0 वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन सर उसके बाद ये वापस नीचे क्यों आ रहा है? वापस साउथ में क्यों जा रहा है? उसके बाद ये वापस साउथ में इसलिए जा रहा है क्योंकि क्या आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया है क्या उस पॉइंट के बाद? नहीं लगाया ना। नो सर। फोर्स तो अभी भी लग रहा है। अब जब फोर्स उस पर 8 न्यूटन अभी भी लगेगा तो वो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। सही है। अब वो नीचे जाने लगेगा। कब तक जाने लगेगा सर? सर जब तक फोर्स लगेगा। जब तक फोर्स लगेगा अब पार्टिकल एक्सेलरेटेड हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, जब ए टू बी पार्टिकल जा रहा था तो मोशन एक्सेलरेटेड था, सॉरी डीसेलरेटेड, रिटार्डेड था, या यहाँ पर क्या हो रहा था? रिटार्डेशन हो रहा था। ठीक है, तो पार्टिकल वाज रिटार्डिंग, उसकी स्पीड कम हो रही थी। इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ने लग जाती है, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि फोर्स अभी भी कंटिन्यूस लग रहा है। तो अब जब बी टू सी की मैं बात करूंगा तो पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में दिखेगा। तो बेटा रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर लॉजिक बहुत आसान है, सिंपल है। आई होप आपको बात यहाँ तक समझ में आई होगी। फटाफट सभी लोग बताएं यस इट इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट। यस एवरीवन। संयम वंशिका अभिवर्धन। very simple question, very basic question. My question is one more. ध्यान से देखिए, सी पॉइंट तक ये पार्टिकल पे कांस्टेंट फोर्स 8 न्यूटन का साउथ डायरेक्शन में लगता है। आफ्टर दिस सी पॉइंट, व्हेन द पार्टिकल रीचेस दिस सी पॉइंट, द फोर्स ऑफ 8 न्यूटन इज बीइंग रिमूव्ड। ठीक है, सो एट पॉइंट सी 8 न्यूटन फोर्स no longer continues to act on it. 8 न्यूटन फोर्स no longer continues to act on it. अब इस पे 8 न्यूटन का फोर्स कंटिन्यूस एक्ट नहीं करता सी पॉइंट के बाद। तो पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ क्या होगा? माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल हैपन टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्या पार्टिकल रुक जाएगा वहीं पे या पार्टिकल अभी भी चलता रहेगा? No, मेरा sir. सवाल ये है।
सर वापस उसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आने लग जाएगा सर। ऊपर क्यों आने लगेगा? जब मैंने क्योंकि 8 सर वो न्यूटन फोर्स आपने हटा दिया ना। फोर्स हटा दिया, इसका मतलब पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं करेगा। फोर्स हटाने का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो हो चुका है, लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो चुकी है क्या? नहीं। नो सर। अब सी पॉइंट पे बात करेंगे तो सी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगी नीचे, कितनी भी हो सकती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है 2 मीटर पर सेकंड हो सकता है 10 मीटर हो सकता है 500 मीटर पर सेकंड हो, आई डोंट नो कितनी वेलोसिटी होगी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि सी पॉइंट पे जब फोर्स लगाना मैंने बंद कर दिया, ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा होगा ना, इसका मतलब फोर्स हटा दोगे तो ये कैसे मोशन में आ जाएगा? तो आफ्टर सी पॉइंट ये यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा। बिकॉज न्यूटन क्या कहता है? न्यूटन कहता है if a particle at rest or in the state of uniform motion will continue to be in the same state until and unless external unbalanced force is applied on it. एक पार्टिकल है जो कि अपनी स्टेट पे ही रहने की कोशिश करता है जब तक उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। तो सी पॉइंट के बाद तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, दैट मींस नाउ इट विल मेंटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। अब ये अपनी ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन करेगा तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यहाँ पर एक्ट कर जाता है। ठीक है, a particle in the state of rest or in the state of uniform motion will continue to be in that same state until and unless an external unbalanced force is applied on it. ठीक है, और यहां पर मेरी जो वेलोसिटी है आफ्टर पॉइंट सी क्या हो जाती है? यूनिफॉर्म हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो आफ्टर पॉइंट सी द वेलोसिटी becomes uniform. After point C, the velocity becomes uniform. और यहाँ पर हमारा ये सवाल के पीछे जो लॉजिक था, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म मोशन, फोर्स के लगने के बावजूद देखो फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। फोर्स जब लग रहा था वो शुरुआत में भी डाउनवर्ड ही लग रहा था, बाद में भी डाउनवर्ड लग रहा था। हमें तो ये लॉजिक समझना था कि कब रिटार्डेशन हो रहा है, कब एक्सेलरेशन हो रहा है। ये चीज समझ गए तो फोर्थ क्वेश्चन समझ गए, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है। बताइए सबको बात क्लियर हो रही है कि नहीं? Yes or no? Now if there is any doubt regarding this point तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर इस पॉइंट से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बता दो। If there is any doubt regarding this point then you can tell me. किसी को कोई डाउट नहीं है? बहुत अच्छी बात है। तो बेटा आज की क्लास में हम यहीं तक देखेंगे।